So, hello biologian. Next session we will start with the tools of recombinant DNA technology. In earlier lecture, we have already discussed the basic introduction of biotechnology, and in genetic engineering, we have started the DNA recombinant technology. That common idea was given by the scientists related with the insulin isolation and formation of artificial insulin as humanin. Okay, so different tools are there that we use in the recombinant DNA technology, and that tools are enzymes, different enzymes, and then the separation of DNA segments, multiplication of DNA segment, and that is related with the recombinant DNA technology steps, and that steps we have already discussed in the earlier lecture. So today we will start the tools of recombinant DNA technology. Okay. Tools means the helping hands, those who are generally related with the separation of desired DNA, multiplication of desired DNA. Clear? So tools of recombinant DNA technologies are as follows. So first tool, we are discussing many tools are there, and each tool we will study in detail in our lectures. So first tool, that is the enzymes. Clear? So what is enzyme? This concept is not new for the biology student, because we everybody know enzyme are the specific biomolecules, those who are generally used as a catalyst. That's why they are called biocatalyst in different biological chemical reaction. वो chemical reactions जो biology में होती है, means जो इंडिविजुअल की बॉडी में होती है, जो सेल में होती है, वो केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने वाले molecules होते हैं enzymes, and we have already know different enzymes are there, their nomenclature systems are there. So here in biotechnology, in genetic engineering, and in recombinant DNA technology, we also use different enzymes, and the classes of enzymes are classified on the basis of work they have done in the टेक्नोलॉजी. वो टेक्नोलॉजी में किस काम में आ रहे हैं, कौन से वर्क में यूज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग कैटेगरीज है. ओके, सो फर्स्ट enzymes definition is clear. What are enzymes and why we required enzymes in the biotechnology field, in the recombinant DNA technology field? आपको समझ में आता जाएगा जैसे जैसे हम एक एक एंजाइम को डिस्कस करेंगे, तो एक्चुअल में हमारे recombinant DNA टेक्नोलॉजी में ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो आपको क्लियर होता जाएगा. क्लियर? सो फर्स्ट एंजाइम that is generally used in the recombinant DNA technology, that is called lysozyme. First category of enzyme, lysozyme. Okay, and in lysozyme, enzymes are pectinase. The name of enzyme. This is the class of enzyme. Lysozyme. Why they are called so? Why they are called lysozyme? Because these enzymes are associated with the lysis. Lysis means degeneration or decomposition of different factor of the cell. सेल वॉल को डीजेनरेट करते हैं, सेल वॉल को डिकम्पोज करते हैं, सेल वॉल को लाइस करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लाइस करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लाइस करते हैं. लाइसिस, दे आर रिलेटेड विद द लाइसिस और डाइजेशन. वो उस स्ट्रक्चर का डाइजेशन करते हैं, इसलिए इनकी कैटेगरी हो गई लाइसोजाइम. ओके, डिफरेंट लाइसोजाइम्स आर देयर, पैक्टिनेज, देन सेल्यूलेज, ओके, then proteases, lipases, okay, chitinase. These are the enzymes related with the category lysozyme. So functions performed by these enzymes are on the basis of their name. Names are there, और हमने already 11th class में पढ़ा है how enzymes named by the associations law, जो भी इनका nomenclature association था, वो नाम कैसे रखता है. तो कुछ नाम जो रहते हैं वो जो वर्क कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड होते हैं, वो जिस पर वर्क कर रहे हैं उससे एसोसिएटेड होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला पैक्टिनेज, तो हमारी जो सेल वॉल रहती है, प्लांट की जो सेल वॉल बनती है वो सेलुलोज और पैक्टिन जैसे सब्सटेंस से बनती है. तो जब भी आपको पैक्टिन को डाइजेस्ट करना है या सेल वॉल में से पैक्टिन को डीजनरेट करना है जिससे सेल वॉल टूट जाए, ओपन हो जाए, हम यूज करेंगे पैक्टिनेज. सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है सेल वॉल के, तो हम यूज करेंगे सेलुलोज. मींस जब भी आप किसी प्लांट सेल को, मान लीजिए आपने एक प्लांट सेल आइडेंटिफाई करी और आप चाहते हैं कि इस प्लांट सेल में जो डीएनए है वो आपके बहुत यूज का है,
या आप चाहते हैं कि हमारे पास कुछ यूज का डीएनए है और हम उसको इस प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, आपका आइसोलेशन हो या इंट्रोडक्शन हो, दोनों कंडीशन में आपको ये सेल वॉल डिसॉल्व करना पड़ेगी, क्लियर। और वो डिसॉल्व करने के लिए, उसको डीजनरेट करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको लाइज करने के लिए आपको एंजाइम लगेगा सेलुलेज, क्लियर। देन प्रोटीएजेस, plasma membrane, related with the plasma membrane. Our plasma membrane is made up by the lipid and protein. So to digest the protein or to dissolve the lipase, we use the enzyme proteases and lipases. Then plasma membrane dissolve. मान लीजिए प्लांट सेल है तो आउटर कवर सेल वॉल था, अगला कवर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करेंगे, क्लियर। काइटिनेज इज द एंजाइम जनरली यूज्ड इन फंगल सेल। अगर आपको फंगल सेल में कुछ डालना है या फंगल सेल से कुछ आइसोलेट करना है, बिकॉज देयर सेल वॉल इज मेड अप बाय द काइटिन, तो उनके कवर को डिसॉल्व करने के लिए हमको एंजाइम लगेगा काइटिनेज। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन डिफरेंट लाइसोजाइम्स आर देयर। अब लाइसोजाइम रिक्वायर्ड क्यों हो रहा है, तो इसका एक मीनिंग आप समझिए। स्टार्टिंग हमने यहाँ से करी कि मान लीजिए आपने किसी सेल को आइडेंटिफाई करा अपना डिजायर डीएनए डालने के लिए या उससे डिजायर डीएनए सेगमेंट निकालने के लिए, तो ये एक सेल है, क्लियर। इस सेल का जो भी आउटर कवर है, अगर एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल है तो सेल वॉल है, आउटर कवर है, फिर इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा पैक डीएनए है इन फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स और इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो जो हमारा डीएनए है, हमने पढ़ा है हमारा जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है कि डीएनए जो रहता है वो 2.2 मीटर लंबा थ्रेड होता है और वो हमारे न्यूक्लियस, जो हमारा 5 माइक्रोन का न्यूक्लियस रहता है, उतनी छोटी सी जगह में कैसे रह पाता है, तो वो पैकिंग करके रहता है। पैकिंग मींस उसके ऊपर पूरा हिस्टोन प्रोटीन का कवर चढ़ता है, वो कंडेंस होता जाता है, सोलेनॉइड मॉडल बनाता है, न्यूक्लियोसोम मॉडल बनाता है, क्रोमेटिन फाइबर्स बनाता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स बनाता है, देन फाइनली क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, जिसके अंदर बहुत कंडेंस्ड कॉइल्ड थिक डीएनए जो है वो प्रेजेंट है। अब हमको हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है कि हमको उस जगह से वो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट निकालना है जो हमारे काम का है। तो आप डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट निकालेंगे कैसे, उसके लिए सबसे पहले आपको ये आउटर कवर सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व करनी पड़ेगी। प्लांट सेल में दोनों डिसॉल्व करनी पड़ेगी, एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व करना पड़ेगी। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने के बाद आपको क्रोमोसोम को खोलकर उसका हिस्टोन प्रोटीन डाइजेस्ट करके डीएनए को ओपन करना पड़ेगा। जब तक आप इसके अंदर बंद डीएनए को ओपन नहीं करेंगे तब तक आप डीएनए सेगमेंट कैसे कट कर पाएंगे, क्लियर। सो फॉर ऑल दीज डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, डाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डाइजेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन that is present with DNA as a cover, as a protective unit, जो उसको कंडेंस और कॉइल होने में हेल्प करता है, तो वो प्रोटीन को भी हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, वो प्रोटीन का कवर भी हमको डीएनए से हटाना पड़ेगा, तब कहीं हमारा डीएनए जो है वो नेक्ड डीएनए के फॉर्म में आपको ओपन होगा, ये लीनियर डीएनए के फॉर्म में आपको ओपन होगा, तब कहीं आप आपका डिजायर्ड सेगमेंट यहाँ पर है या यहाँ पर है, कहाँ है, टर्मिनल पोर्शन पर है, बीच में है, कहाँ है, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप उस सेगमेंट्स को कट करेंगे, क्लियर। सो दीज आर द एंजाइम्स रिक्वायर्ड इन द स्टार्टिंग फेज। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के शुरू की कंडीशन में ही हमको रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मेन डीएनए ओपन ही यहाँ से होगा, क्लियर। सो ऑल दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड लाइसोजाइम्स। अब आप देखिए सेल मेम्ब्रेन को हमने प्रोटीएजेस और लाइपेज से डिसॉल्व कर लिया, पैक्टिनेज और सेलुलोज से हमने सेल वॉल को डिसॉल्व कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, लाइस कर लिया। इसके बाद हमने प्रोटीएजेस, जो हिस्टोन रिलेटेड प्रोटीएजेस है उसको यूज किया, तो हमने यहाँ से हिस्टोन प्रोटीन को डिसॉल्व कर लिया, हिस्टोन प्रोटीन को डिसॉल्व कर लिया, तो हमारा लीनियर ओपन डीएनए, नेक्ड डीएनए जो है वो आपको अवेलेबल हो गया, क्लियर। एंड देन दिस डीएनए इज टेकन आउट, हम उसको आइसोलेट कर लेते हैं, हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। एंड हाउ वी सेपरेट, फिर उसको सेपरेट कैसे कर, पहले तो उसका आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेशन मींस यहाँ से हम उसको निकाल लेते हैं हमारे डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को। तो कैसे निकालते हैं, तो वो तो हमारा पूरा जो डीएनए है जो साइड से कट होकर आया है, वो छोटा सा सेगमेंट है, हम पूरा डीएनए सेपरेशन आइसोलेशन टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो आप ऑलरेडी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चिल्ड अल्कोहल के साथ हम उसको थिक लूप के फॉर्म में, थिक थ्रेड के फॉर्म में आइसोलेट कर लेते हैं, एंड दीज आइसोलेटेड डीएनए देन सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये पर्पस है हमारे लाइसोजाइम्स का। Now lysozyme is clear for you, what are the different lysozymes and how they used in the recombinant DNA technology. Okay. Now next category of enzyme that is used in the recombinant DNA technology after lysozyme,
that enzymes are called, their class is called nucleases. Clear? They are called nucleases, means these particular enzymes class is related with the cutting of DNA segment, DNA nucleotide sequences. जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये उसको कट करता है, इसलिए कैटेगरी हो गई न्यूक्लिएसेस. क्लियर? अब अगर आप न्यूक्लिएसेस को क्लासिफाई करें तो न्यूक्लिएसेस जो है वो दो टाइप के होते हैं. These are related with the cutting of nucleotide sequences or specific DNA segment. जो आपके डिजायर डीएनए सेगमेंट है ये उसकी कटिंग से रिलेटेड एंजाइम होता है. ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लिएस और एक होता है एंडोन्यूक्लिएस. क्लियर? अब आप अगर डीएनए को देखें तो डीएनए जो है एक लीनियर फॉर्म में ऐसे होता है, इसका 3' to 5' एंड 5' to 3'. क्लियर? मान लीजिए आपने अपना डिजायर डीएनए सेगमेंट आइडेंटिफाई करा, आपको पता चला कि आपका डिजायर डीएनए सेगमेंट जो आपको कोई ग्रोथ प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, आपको इंसुलिन बनाने के लिए आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए, या फिर कोई वैक्सीन बनाने के लिए चाहिए, जो भी डिजायर डीएनए सेगमेंट आपको चाहिए उसकी प्लेस आपने आइडेंटिफाई कर ली. पता चला कि वो जो भी डीएनए सेगमेंट है वो टर्मिनल पोजीशन पर है. क्लियर? आपको पता चला कि वो मिडल वाली पोजीशन पर है, मतलब ये टर्मिनल सेगमेंट्स को छोड़कर नियर अबाउट आप ये समझ के चलो कि 500-600 बेस आपने इधर इधर से छोड़ दिए, तो जो बीच के सीक्वेंसेस बचे वो सीक्वेंस में पॉसिबली आपका डीएनए है. तो इस कंडीशन में आप अलग अलग न्यूक्लिएसेस यूज करते हैं. तो एक्सोन्यूक्लिएस वो न्यूक्लिएस होता है, वो एंजाइम होता है जो डीएनए को उसके टर्मिनल साइड से कट करता है, उसके 5' 3' टर्मिनल एंड के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कट करता है. दैट इज एक्सोन्यूक्लिएस. अब जो हमारा एंडोन्यूक्लियस रहता है, वो एंडोन्यूक्लियस जो रहता है, एक टर्म आती है एंडोन्यूक्लियस का मतलब ये है कि ये हमारे बीच वाले डीएनए सेगमेंट्स को कट करेगा, कहीं से भी बीच वाले टर्मिनल्स को छोड़ के ये बीच वाले डीएनए सेगमेंट्स को कट करेगा. तो जो एंडोन्यूक्लियस होता है उसमें एक स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस होता है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम. और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो रहता है वो हमारे डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को कट करता है विद पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंसेस. आपने एंडोन्यूक्लियस बोला तो वहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बीच वाले किसी भी सेगमेंट को कट करेगा. लेकिन अगर आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्ड यूज करा तो आप ये समझ जाइए कि वो आपकी रेस्ट्रिक्टेड साइड, आपके रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को कट करेगा. दे आर द स्पेसिफिक सीक्वेंस, वो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं और वो सीक्वेंस जो रहते हैं वो जनरली स्टिकी एंड्स या ब्लंट एंड से कनेक्टेड होते हैं. वो क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. So these are the two enzymes. One is exonuclease and another one is endonuclease. These cut the DNA segment from the terminal part, 5' 3' terminal ends of the DNA, and these enzyme cut the DNA segment from the middle. वो middle से बीच वाले पोर्शन से DNA segment को कट करता है. And the specific endonuclease enzyme, जैसे अगर आपने मान लिया ये हमारा डीएनए है, यहाँ से कट हो रहा है तो ये हमारा एक्सोन्यूक्लियस हो गया, लेकिन ये आपका डीएनए है. क्लियर? और आपने डीएनए को यहां से कट किया, ये वाली पोजीशन से डीएनए कट हुआ, एट दैट टाइम इट इज एंडोन्यूक्लियस. लेकिन अगर आप एंडोन्यूक्लियस को कट कर रहे हैं तो वो स्टिकी एंड्स को कट कर रहा है. मान लीजिए यहाँ पर वो एंड ओपन कर रहा है जी और यहाँ पर वो एंड ओपन कर रहा है सी. क्लियर? सो दीज स्टिकी एंड कटिंग विद पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंसेस. पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंसेस मान लीजिए सीक्वेंस है GAATTC, हम इसको लिखेंगे CTTAAG. अब आप अगर इस सीक्वेंस को रीड करें, आपने रीड करा इसको 5' to 3' एंड 3' to 5', आप देखिए इसका रीडिंग जो है 5' to 3' एंड 5' to 3' रीडिंग इज सेम. When you read this sequence from left to right or right to left, their reading is same. These type of DNA sequences are called polyandromic sequences, and these polyandromic DNA sequences was cut by the restriction endonucleases enzyme. Restriction endonuclease, endonuclease and restriction endonuclease, ये दो आपको ध्यान में लाना है. ठीक है? अब जब restriction endonuclease enzyme जो है वो डिस्कवर हुआ तो इसको डिस्कवर करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट दिया था लीन एंड अर्बर. दो साइंटिस्ट थे लीन एंड अर्बर. क्लियर? LINN and ARBER, ये दो साइंटिस्ट थे. ये अपना एक कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे. तो इन्होंने देखा कि जो ई कोलाई सेल रहती है उसमें अगर फेज वायरस चला जाए
तो वो फेज वायरस जो है उसके अगेंस्ट ई कोलाई जो है कुछ रेजिस्टेंट केमिकल्स बनाती है और उस फेज वायरस की ग्रोथ को अपने अंदर चेक करती है, मतलब उसको मल्टीप्लाई नहीं होने देती, उसको ग्रोथ नहीं करने देती। तो ऐसा एक्चुअल में वो क्या बनाती है, तो उनको पता चला कि वो 2 एंजाइम्स बनाती है। क्लियर? E. coli cell produced 2 enzymes when phage virus entered inside the E. coli cell, and when they analyze these enzymes, when they study chemical nature of these enzymes, they concluded that 2 enzymes were produced by the E. coli cell. One enzyme is related with the methylation of DNA. Methylation of DNA means addition of methyl group in the DNA. जो DNA रहता है उसका जो मिथाइल ग्रुप है वो उसमें ऐड करता है, दैट इज कॉल्ड मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। एंड सेकंड वन इज द cutting of specific DNA sequences, and that specific DNA sequences, those who are generally cut by these enzymes, ये enzymes जो कट करता है वो नियर अबाउट 6 बेस पेयर वाले स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, जिसमें 6 बेस पेयर जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एंजाइम्स रहते हैं, ये एंजाइम्स का नेचर है जो उन्होंने आइसोलेट किए उनसे, इस एंजाइम का नेचर है कि ये जो 5' टर्मिनल्स रहते हैं, 5' टर्मिनल से ये डीएनए सेगमेंट को कट करना स्टार्ट करते हैं और 5' डीएनए सेगमेंट को ये नियर अबाउट 1000 बेस अवे 5' टर्मिनल से डीएनए सेगमेंट को कट करते हैं और 1000 बेस अवे मतलब उसके आगे जो है वो आपको 1000 बेस जो है वो अवेलेबल होंगे, ऐसे साइड से वो डीएनए सेगमेंट को कट करते हैं। सो फाइनली दैट एंजाइम दोस हु कट दैट साइट्स आर नेम्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्टेड साइट को कट कर रहे थे। तो 2 एंजाइम मिले, एक एंजाइम मिथाइलेशन से रिलेटेड था और एक एंजाइम जो है वो रेस्ट्रिक्शन डीएनए सेगमेंट की कटिंग से रिलेटेड था। जब अर्बर और लीन ने ये कॉन्सेप्ट दिया तो हमारे पास हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो आए, दैट इज कैली एंड स्मिथ। हमने पहले भी पढ़ा है कि उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी में। तो कैली और स्मिथ, KELLEY, कैली एंड स्मिथ, ये 2 पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो आइसोलेट किया, सेपरेट किया एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया से, एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। क्लियर? तो वो जो बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया से उन्होंने एक पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उन्होंने आइडिया दिया। आइडिया किसने दिया? लिन एंड अर्बर ने, कि ऐसा होता है कि बैक्टीरियल सेल में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके डीएनए के कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स बनाते हैं और वो एंजाइम फेज वायरस की ग्रोथ को चेक करते हैं। तो क्या करते हैं वो एंजाइम, वो भी उन्होंने कंक्लूजन दे दिया कि वो डीएनए मिथाइलेशन करते हैं और वो रेस्ट्रिक्शन साइट को कट करते हैं, लेकिन उन्होंने वो पर्टिकुलर एंजाइम्स को एक स्पेसिफिक यूजेबल फॉर्म में आइसोलेट नहीं किया। तो आइसोलेट करके एक यूजफुल एंजाइम्स के को बनाने वाले, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बनाने वाले पहले साइंटिस्ट थे कैली एंड स्मिथ, और उन्होंने जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बनाया था दैट इज हिंद सेकेंड। क्लियर? ये जो हिंद सेकेंड था, दिस एंजाइम इज रिलेटेड विद द कटिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट एंड दिस कट द ब्लंट एंड। अब वो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड आपको समझ में आएंगे जब हम इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट एंजाइम प्रिपेयर्ड बाय द Kelly and Smith. These cut the DNA segment from the 5' terminal. 5' terminal से ये DNA segment को कट करता है। अगर ये DNA है, ये 5' terminal है, तो ये यहाँ से DNA segment को 1000 बेस अवे ये DNA segment को जो है वो कट करेगा, मतलब वो 1000 बेस के साथ DNA segment को कट करेगा। With recognition site, वो कुछ पर्टिकुलर साइट रहती है, वो साइट जो है वो 6 बेस पेयर के साथ वाली साइट होती है, उस साइट को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्नाइजेशन साइट। उस साइट को कट करने वाले एंजाइम को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जनरली कट द पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस विद 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर के साथ वाले पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस को वो कट करते हैं। पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? ऐसे सीक्वेंस जिसको हम लेफ्ट टू राइट पढ़े या राइट टू लेफ्ट पढ़े, द रीडिंग इज सेम, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रीडिंग इज सेम, नाइट्रोजनस बेसिस रीडिंग इज सेम, दैट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिकॉग्नाइजेशन साइट, पॉलीएंड्रोमिक साइट, ये सब कुछ देने वाले साइंटिस्ट हमको लीन एंड अर्बर। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो बना था हिंद सेकेंड, और इसको आइसोलेट किया था हिमोफाइलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया से।
ये जो भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है दैट इज रिलेटेड विद द नॉमेनक्लेचर एंड देन दैट वी विल डिस्कस फर्दर। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द restriction endonuclease enzyme. Exonuclease enzyme rarely used in the biotechnology, in the recombinant DNA technology, because generally the DNA segment that we required in the recombinant DNA technology associated with the production of human related protein or the enzymes or the vaccine, that is generally available in the middle segment of the DNA के middle segments में मिलते हैं, and that's why commonly used enzyme in the recombinant DNA technology is endonuclease, and in endonuclease commonly used enzyme is the restriction endonuclease. Okay, so enzymes we are discussing, and first enzyme we have discussed, that is the lysozyme, and the second enzyme, lysozyme, is related with the digestion of different part of the cell to open the DNA, and nucleases is responsible to cut the DNA, desired DNA segment at the specific recognition site. Okay, so we will discuss the endonuclease with restriction endonuclease. Clear? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, किसने डिस्कवर किया, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट बना, किसने बनाया, किससे बनाया, कौन से बैक्टीरिया से बनाया। क्लियर? अब जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, अगर आप इनको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं उनकी कटिंग साइट से। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, तो ये दो साइड से जो है वो हमारे डीएनए को कट करते हैं। एक कटिंग साइड रहता है स्टिकी एंड, क्लियर, और एक रहता है ब्लंट एंड। क्लियर? जैसे मान लीजिए हमने स्टिकी एंड का मतलब समझिए, हमने बोला GAATTC है, ये CTTA और G है। अगर हमने बोला वो स्टिकी एंड को कट कर रहा है, तो ये यहाँ से ये वाला इसका कटिंग साइड होगा, यहाँ से ये वाला इसका कटिंग साइड होगा। अब आप सोचिए, ये है 5 डैश, ये है 5 डैश, ये है 3 डैश, ये है 3 डैश। क्लियर? पॉलीएंड्रोटिक सीक्वेंसेस है। अब इसने वो पॉलीएंड्रोटिक सीक्वेंसेस को कट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब अगर इसने ऐसे काटा तो देखिए यहाँ से क्या ओपन होगा, ये G जो है ये चला गया है 5 एंड, ये छोटा सा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, और AATTC ये हो गया हमारा 5 डैश टू 3 डैश। क्लियर? क्योंकि ये सेगमेंट अलग हो गया, तो ये एक हमारा सेगमेंट कट हो गया। अब इसको देखिए, ये क्या कट होगा, ये कट होगा CTTA, क्या रहेगा ये 3 डैश टू 5 डैश, और ये वाला सेगमेंट जो छोटा सा यहाँ पे 5 डैश कट होगा, ये क्या रहेगा G। क्लियर? तो अब आप एक चीज देखिए, जो हमारा नया डीएनए रहेगा, जो भी फॉरेन डीएनए है, या कोई भी, मान लीजिए हमने वेक्टर में कट किया, मान लीजिए हमने डिजायर डीएनए में कट किया, दोनों काम में हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज कर रहे हैं। तो इफ वी ओपन द G ओपन है, क्लियर, और दूसरा जो डिजायर डीएनए हम ऐड करने वाले हैं उसका यहाँ पर हमने C ओपन करा है, तो दोनों के स्टिकी एंड जो रहेंगे वो एक दूसरे से बहुत इजीली बॉन्ड बना लेंगे, and that's why two DNAs are easily connect with each other and finally the circular DNA is formed। तो फिर हमारा सर्कुलर डीएनए दोनों आधा आधा पोर्शन कंबाइन होकर बहुत इजीली फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? सो जनरली इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वी कट द स्टिकी एंड्स। क्लियर? स्टिकी एंड कट होते हैं। और अगर हम ब्लंट एंड की बात करें, जैसे आपने बोला आपका एक वो है AGCT, इसको उल्टा लिखिए, लिखेंगे TCGA। क्लियर? अब अगर हमने बोला ये ब्लंट एंड को कट करेगा तो उसका कटिंग साइड ये रहेगा। क्लियर? अब अगर ये डीएनए सेगमेंट कट हुए तो क्या बनेगा AG, और इधर क्या चला जाएगा CT, इधर क्या आएगा TC, और इधर क्या आएगा GA। क्लियर? तो AGTC ये एक सेगमेंट ओपन होगा, CTGA ये एक सेगमेंट ओपन होगा। सो व्हेन restriction endonuclease enzyme cut DNA segment like that, this type, that is called blunt end cutting, and it is called sticky end cutting. Sticky end cutting is very favorable in recombinant DNA technology because when we cut the वेक्टर डीएनए, मान लीजिए आपने वेक्टर डीएनए को कट किया, ये आपका डिजायर डीएनए सेगमेंट है, वेक्टर डीएनए को आपने कट किया है C से, इसको कट किया है G से, स्टिकी साइड। क्लियर? इसको कट किया है A से और इसको कट किया है T से। सो व्हाट हैपेंड ड्यू टू द बॉन्ड एफिनिटी,
these both terminals easily connect with each other. Sticky ends easily fit in the frame, they easily connect with each other, and then the combined DNA, recombinant DNA, were easily formed. So these are the two types of enzyme restriction endonuclease, when they cut the sticky end or when they cut the blunt end. Okay, अब अगर आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़े कौन कौन से एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो स्टिकी एंड को कट करते हैं, तो एग्जांपल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मीट आल्सो. इको आर आई, क्लियर. हिंद थर्ड, BAMH1, SAL first. These are the enzyme, those who are restriction endonuclease enzyme, and they cut the sticky end. And other enzyme, those who cut the blunt end, that is ALU first, that is Hind second, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिसको डिस्कवर किया था हमारे स्मिथ और कैली ने. LU first, Hind second, and next is the enzyme that is Hind second, Hind third, Hind first also is there. Hind, HIND, Hind first, clear. And Eco R second, clear. These are the enzymes, those who are restriction endonuclease, but they cut the blunt end. ये ब्लंट एंड को कट करने वाले एंजाइम्स है और ये स्टिकी एंड को कट करने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एंजाइम्स के नाम मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट इतने नाम तो आपको मालूम होना चाहिए. इको आर आई, इसको फर्स्ट सेकंड, ये रोमन जो हमारी गिनती रहती है 1 2 3 4 वो है, लेकिन पढ़ने में इसको ऐसा बता रही हूँ आपको. इको आर फर्स्ट, हिंद थर्ड, BAMH first, SAL first, clear. And then the enzyme, those who cut the blunt end, ALU first, Hind second, Hind first, and Eco R second, clear. These are the restriction endonuclease enzyme. But one question is there, how we classify the restriction endonuclease enzyme? आप इसको classify कैसे करेंगे? So after the discovery of Smith and Kelly and Lin and Arbar, they have given the classification of restriction endonucleases. So restriction endonuclease classified into three categories. Three categories are there. Restriction endonuclease first, type first, restriction endonuclease type second, and restriction endonuclease type third. आपको टाइप जरूर लिखना है, यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन आपको लिखना है. Restriction endonuclease type first, restriction endonuclease type second, restriction endonuclease type third, clear. अब आप ये समझिए कि जब पहली बार जो हमारे साइंटिस्ट थे लिन एंड अर्बर, जब उन्होंने पहला एंजाइम आइसोलेट किया था, वो इसकी स्टार्टिंग थी. फिर हिंद सेकंड बनाकर हमारे जो स्मिथ है और कैली है, इन्होंने उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया. और आज आप ये समझ के चलिए कि हमने नियर अबाउट 950 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन से, स्ट्रेन मतलब उनकी जो स्पीशीज होती है उससे हमने नियर अबाउट 950 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है अब आइसोलेट कर लिए. जहां एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैली ने आइसोलेट किया था, स्मिथ एंड कैली ने हिंद सेकेंड, उसके बाद एक रास्ता खुल गया एंड कंटिन्यूअसली वी यूज द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया एंड वी आइसोलेट द डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, क्लियर. So they are classified, all that enzyme isolated from the bacterial cell classified as type second, type first and type third. अब आप इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस देखो कि जो टाइप फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ये 3 यूनिट के साथ बना हुआ रहता है. जो प्रोटीन यूनिट्स होती है जो एंजाइम्स बनाने में पार्टिसिपेट करती है, तो इसमें 3 सब यूनिट होती है. ये सिंपल होता है, इसमें ऐसी कोई भी सब यूनिट नहीं होती है, और इसमें 2 सब यूनिट होती है, क्लियर. जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट है, ये हमारे बेस पेयर्स को कट करता है नियर अबाउट
5 डैश एंड से और 1000 बेस पेयर अवे ये हमारे एंजाइम डीएनए सेगमेंट को कट करता है। क्लियर? ये ऐसे डीएनए सेगमेंट को कट करता है जहां 4 to 8 बेस पेयर यूज होते हैं। और अगर हम देखें तो हमारी जो रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी है उसमें सबसे ज्यादा यही एंजाइम यूज होते हैं और नियर अबाउट 850 इनके नंबर है। क्लियर? और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम थर्ड है, इसका बिहेवियर बिल्कुल फर्स्ट के जैसा होता है। क्लियर? अगर आप देखें जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट है, ये डीएनए सेगमेंट को मिडल में रीड तो करता है, ये रीड करेगा, यहां पर रीड कर लेगा, यहां पर रीड कर लेगा, लेकिन ये इसको कट नहीं करेगा। डू नॉट कट द रिकॉग्नाइजेशन सेगमेंट, रेस्ट्रिक्टेड सेगमेंट, ये भी नहीं करता है, ये भी कट नहीं करता है, लेकिन ये कट करता है। क्लियर? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता है, ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता है, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। अगर इस एंजाइम को फंक्शन करना है तो ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में, और इसके अलावा एडिनोसाइल 5 एडिनोसाइल मिथियोनिन 5 एडिनोसाइल मिथियोनिन की प्रेजेंस में ये अपनी एक्टिविटी करता है। इसको अपनी एक्टिविटी के लिए सिर्फ मैग्नीशियम आयन और एटीपी की जरूरत पड़ती है। और एक्टिविटी मींस जो भी कैटालाइटिक एक्टिविटी करेगा, एंजाइम है तो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का काम करेगा, तो वो जो भी एक्टिविटीज कर रहा है उस एक्टिविटी के लिए उसको मैग्नीशियम और एटीपी लगेगी, इसको एक्स्ट्रा लगेगा, और इसको भी सेम टाइप फर्स्ट जैसा लगेगा। आ रहा है समझ में? तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो साइट्स है, जो भी क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स का। 3 एंजाइम्स आर देयर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। ये 3 सब यूनिट से बना है, ये सिंपल है, ये 2 सब यूनिट से बना है। ये नियर अबाउट 1000 बेसेस को कट करता है, ये 4 to 8 बेस पेयर्स को कट करता है, ये भी नियर अबाउट 1000 बेस पेयर को कट करता है। इसके टाइप जो है हमारी बायोटेक्नोलॉजी में बहुत कम है, इसके 350 अबव है, इसके भी बहुत कम टाइप है। ये डीएनए सेगमेंट को मिडल में रीड तो करता है, रेस्ट्रिक्शन साइट को रीड तो करता है, लेकिन उसको कट नहीं करता है। ये कट करता है, ये भी कट नहीं करता है, ये भी उस साइट को कट नहीं करता है। अगर आप इस फर्स्ट कैटेगरी के एंजाइम्स को देखेंगे तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आपको मिथाइलेशन वाले एंजाइम भी मिलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया मिथाइलेशन, और रेस्ट्रिक्शन कटिंग साइट वाले एंजाइम में मिलेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट कटिंग, ये दोनों एंजाइम टाइप फर्स्ट में मिलेंगे। क्लियर? दोनों कैटेगरी मिलेगी। यहां पर आपको जनरली रेस्ट्रिक्शन साइट वाले एंजाइम मिलेंगे, और यहां पर भी आपको दोनों कैटेगरी मिलेगी, मिथाइलेशन एज वेल एज रेस्ट्रिक्शन साइट। इसलिए बायोटेक्नोलॉजी में जो एंजाइम कैटेगरी सबसे ज्यादा यूज होती है दैट इज टाइप सेकंड। एंड व्हाई वी यूज दिस टाइप? क्योंकि देखो, एक तो वो डीएनए सेगमेंट को रीड तो करता है, हमको रीडिंग के लिए तो नहीं चाहिए, रीडिंग के लिए तो सिर्फ हमको आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए। चलिए हमने आइडेंटिफिकेशन इससे कर लिया, लेकिन मेन काम क्या है हमारा? मेन काम है वो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को कट करना। तो कट कौन करेगा? जब दोनों काम एक ही एंजाइम से हो जा रहा है तो फिर हम अलग अलग एंजाइम क्यों यूज करेंगे? सो वी यूज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैटेगरी सेकंड, टाइप सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज it is the basic differences and the basic classes of restriction endonuclease enzyme that was suggested by the Kelly, Arbar, Smith and Lane. They classified, they discovered the restriction endonuclease enzyme, they isolate the restriction endonuclease enzyme, and then the discovery area is open and number of restriction endonucleases were discovered in which few are used in the recombinant DNA technology and few are not used. That on the basis of that is classified as type first, type second and type third. Now next we will discuss the nomenclature of restriction. ये आप जितने भी नाम अभी सुन रहे थे आपको बहुत नया नया लग रहा होगा कि ये क्या है, इनको ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है that is related with the nomenclature. If we give the specific name to the isolated restriction endonuclease enzyme, that method is called nomenclature. That process is called nomenclature. जैसे हम साइंटिफिक नेम रखते हैं एनिमल्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, like that only. But the rules and regulations are different. For example, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एंजाइम बताया, नाम बताया EcoR फर्स्ट। क्लियर? अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे हुआ ये समझ लिया। जो ECO है ये E फॉर इस्चीरिया,
Co for coli. The name of bacteria is Escherichia coli. क्लियर? आप ये समझ जाइए कि ये जो एंजाइम हमने आइसोलेट किया है, ये एंजाइम हमने आइसोलेट किया है ई कोलाई सेल से। कौन से बैक्टीरिया से निकाला है? ई कोलाई बैक्टीरिया से। तो अब हमको इसको एंजाइम्स को नेम देना था, तो नेम में हमने क्या करा, उसका जो जेनेरिक नेम है उसका कैपिटल फर्स्ट नेम ले लिया, फर्स्ट लेटर ले लिया कैपिटल। क्लियर? उसका जो स्पीशीज नेम है कोलाई, COLI, और हम तो इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द नोमेनक्लेचर रूल, तो इसके हमने ले लिए दोनों स्मॉल लेटर। इसका सिर्फ फर्स्ट लेटर लिया कैपिटल और उसके दो स्टार्टिंग वाले लेटर ले लिए स्मॉल फॉर्म में, तो ये बन गया इको। क्लियर? इसका स्ट्रेन है आर क्या बताता है? स्ट्रेन। हमने पहले पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, लाइक डी स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन। वो जो प्रोसेस करते हैं, जो उनका पॉलीसेकेराइड कवर होता है, जो उनका कैप्सूल का नेचर होता है, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं, उसके बेस पर उनके स्ट्रेन होते हैं। सो आर इज रिलेटेड विद द रेजिस्टेंट स्ट्रेन, जिनमें हमारा बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। तो आर स्ट्रेन इज देयर, और ये फर्स्ट रोमन लेटर की गिनती है, ये पहला, ये फर्स्ट है। तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया के आर स्ट्रेन से पहली बार निकाले जाने वाला एंजाइम ये है। फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड एंजाइम इज दिस, दैट्स व्हाई नेम इज गिवन ई को आर फर्स्ट। क्लियर? सो रूल इज क्लियर। जैसे हमने एक बैक्टीरिया, एक एंजाइम का नेम लिखा है हिंद सेकेंड। क्लियर? हिंद सेकेंड। अब हिंद सेकेंड में H फॉर हिमोफाइलस, हिमोफाइलस, I फॉर इन्फ्लुएंजी, क्लियर, D फॉर स्ट्रेन एंड सेकेंड। इसका मतलब ये है कि इस बैक्टीरिया से पहले भी कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेट हो चुका है। ये सेकेंड नंबर का, इसलिए मैंने आपको बोला हिंद फर्स्ट भी है, तो वो फर्स्ट इसलिए क्योंकि इस बैक्टीरिया से उसको पहली बार निकाला गया, दैट इज द हिंद सेकेंड। अब हिंद सेकेंड जो है वो कौन सा एंड को कट करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये ब्लंट एंड को कट करता है। क्लियर? और ये जो इको आर फर्स्ट है, ये किसको कट करता है? इको आर फर्स्ट, ये जो रहता है ये कट करता है हमारे स्टिकी एंड्स को। क्लियर? सो हाउ दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नेम्ड, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले नेम लिख के दिया है, BAMH फर्स्ट, BAMH फर्स्ट। अब अगर आप इसका नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे? B फॉर बैसिलस, AM फॉर अमाइलोफेशियंस, अमाइलोलिक्विफेशियंस, AMYLO अमाइलो, LIQUI लिक्विफेशियंस, अमाइलो लिक्विफेशियंस। तो बैसिलस से हमने कैपिटल बी ले लिया, अमाइलो लिक्विफेशियंस से हमने स्टार्टिंग के दो स्मॉल लेटर ले लिए, स्ट्रेन है उसका H, और वो फर्स्ट टाइम आइसोलेट हुआ इस बैक्टीरिया से, दैट्स व्हाई नेम इज BAMH फर्स्ट। ओके, सो basic enzyme used in the recombinant DNA technology we have discussed, that is the lysozymes, then nucleases. In nucleases we have discussed two endonucleases and exonucleases. In exonuclease we discussed the restriction endonuclease, those who generally cut the polyandromic sequences of DNA and generally cut the sticky ends or blunt ends, and how these enzymes works, their classification, type 1, type 2 and type 3, and their nomenclature method. Okay, in the next session we will discuss the other enzymes, those who are used in the recombinant DNA technology.